Assalamu alaikum, all my dear students. How are you all? Hope you all will be fine and safe. As you know very well that in current situation, COVID-19 is again rising rapidly and its second wave is quite severe. So in keeping with the rising corona infection cases and government announcement, we are again switching towards online mode of learning. Attendance for online classes is mandatory for all the students. However, you have to pay proper attention towards all the lectures and given homeworks. Parents are expected to make suitable arrangements and at home to ensure that their children have access to a working internet connection and device to attend online classes and complete the assigned homeworks. So my dear students, please stay functional and attentive, stay at home and stay safe. Okay students, now we will move towards the today's lecture. In December, it is my first lecture. Okay, so I will give you the syllabus for December. Before giving you the syllabus for December, month of December, I would like to discuss the chapters which we have done in the class. As you know that we have done the chapters in class that these are like chapter number 1 is our food, then teeth and digestion, clothes and fibers, houses all around, solids, liquids and gases. So these chapters we have done in the classes after completing these chapters, now we will move towards the new chapter. We have the time, so I have added one more chapter in your syllabus for syllabus for the month of December. So the name of the chapter I am going to tell you that that is look at the book. The chapter is force, work and energy. Okay, it is the chapter force, work and energy, and we can find this chapter at the page number 77. Okay students, please open the page number 77. Here you can find the chapter force, work and energy. It's a very interesting chapter students. Now in the book you can see, you can watch a diagram. There is a diagram of an aeroplane. Okay, so you can see there is an aeroplane of red color in the diagram, and before the diagram here is a question. Okay students, the question is that you can see all the things on your screen. The question is that it is the question is given in the warm-up activity. Warm-up activity means it is the activity it is given to the students फॉर इंटरेस्ट. ठीक है ना, ये बच्चों को इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए चैप्टर में दी जाती है. बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग होती है. तो इसकी वार्म अप एक्टिविटी है स्टूडेंट्स. इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए हम बुक में. व्हाट मेक्स दिस टॉयस मूव, यानी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये टॉयस हैं ये मूव करते हैं. आपको पता है कि बच्चों को जो है टॉयस में बहुत इंटरेस्ट होता है. तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि टॉयस से सब बच्चे खेल रहे होते हैं और बहुत इंटरेस्ट से और बहुत शौक से खेलते हैं. तो क्वेश्चन दिया गया है कि क्या चीज़ है जो कि इन टॉयस को मूव करवाती है, किस चीज़ की वजह से टॉयस मूव करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लाइन इज़ गिवन हियर. चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड राइट इट बिलो ईच पिक्चर. ठीक है ना, द वर्ड्स आर गिवन हियर, यू कैन सी. ठीक है, द वर्ड्स आर गिवन हियर. देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी आप वर्ड सेलेक्ट करें. आप खुद से कुछ नहीं लिखना, वर्ड्स गिवन है यहाँ पे, इनमें से सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट करने के बाद आपने पिक्चर्स के नीचे लिखना है. वर्ड्स आर गिवन हियर. पुश, पुल, push, pull, winding, battery. Okay, push, pull, winding, battery. Right, these 4 words are given here and you have to, there are 4 pictures and you have to select the correct word for each picture. Okay, first diagram is the diagram of an aeroplane. Then you can see there is a robot. Robot is laughing in the picture. एंड देयर इज़ अ रिमोट कंट्रोल नियर द रोबोट. ठीक है ना, रिमोट कंट्रोल रखा हुआ है रोबोट के बिल्कुल पास में, करीब में रोबोट है. और एक टॉय है. ठीक है, देयर इज़ अ टॉय
उसके गले में के पास जो है एक रोप यानी रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। तो एक टॉय है एंड देयर इज़ अ वॉकर, ठीक है ना, जिससे बेबीज़ का वॉकर होता है, एक छोटा सा बेबीज़ का वॉकर है, ठीक है। तो ये सब कैसे मूव करते हैं ये आपने जो है ना करेक्ट पार्ट सेलेक्ट करना है ऊपर गिवन लिस्ट पे से, और उसके नीचे आपने करेक्ट पार्ट सेलेक्ट करके उससे लिखना है और बताना है कि सब चीज़ें कौन सी किस चीज़ की वजह से, कौन से वर्ड की वजह से मूव करती हैं। सो इट इज़, आई होप इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी एक्टिविटी एंड you will do it by yourself. Okay, now students, after this we will move towards the chapter. Okay, the first definition or first heading which is given in the chapter, that is force, ठीक है ना। force यानी ताकत, कुव्वत, ठीक है। तो force क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। I am reading some points from the book. You already know that pushes and pulls are forces, ठीक है। आप सबको पता है कि जो पुश करना यानी कोई चीज़ को धक्का देना, कोई चीज़ को खींचना, ये सब फोर्सेस होती हैं। फोर्स की वजह से सारे काम होते हैं। When you push or pull something, it moves. आप जब भी कोई चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो अपनी जगह से मूव करती है। When you throw a ball, you use force. जब आप गेम खेलते हुए बॉल को थ्रो करते हो, बॉल फेंकते हो आप, तो अपनी फोर्स यूज़ करते हो। जब बॉल को कैच करते हो तब भी अपनी फोर्स यानी अपनी ताकत, अपनी क़ुव्वत यूज़ करते हो उसको कैच करने के लिए। When you hit a moving ball, you use force to change its direction. और इस तरह से आप जैसे बैट से अब जो है बॉल को हिट करते हो, उसको हिट करते हो तो क्या होता है, आप अपनी फोर्स यूज़ कर रहे होते हो और हिट करने की वजह से बॉल अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ठीक है। व्हेन यू स्टॉप अ मूविंग बॉल, यू यूज़ फोर्स। आपकी तरफ कोई बॉल आ रही है, उसको आप हैंड्स में कैच करते हो, उसको होल्ड करते हो, तो तब भी आप फोर्स यूज़ करते हुए ही ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। ये सबको पता है कि डेली लाइफ में हम ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, गेम खेलते हुए कर रहे होते हैं सब चीज़ें। नाउ लेट्स सी अनदर डायग्राम. Okay, in the diagram there is a boy, little boy, and he is throwing a ball. Okay, he is playing and throwing a ball. So it means in throwing the ball he is using his force. So it is also written here, using force to move ball, cricket ball, ठीक है ना। तो देखिए ये जो लड़का है ये अपने क्रिकेट बॉल को मूव करवाने के लिए अपनी फोर्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। There is another picture. In this picture there is a boy and he is hitting the ball with bat, ठीक है ना। बच्चे जैसे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बैट बॉल बड़े शौक से खेल रहे होते हैं। तो यहाँ जो लड़का है ये जो है बैटिंग कर रहा है और बैट से बॉल को हिट कर रहा है और बॉल जो है यकीनन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो ये सब करने के लिए कि ये वो अपनी फोर्स यानी एनर्जी अपनी यूज़ कर रहा है। इन अनदर पिक्चर यू कैन सी देयर इज अनदर बॉय एंड ही इज़ कैचिंग द बॉल, ठीक है। एक और लड़का जो बॉल थ्रो होके आ रही है उसके पास, उसको कैच कर रहा है, ठीक है। इट इज़ रिटन हियर, यूजिंग फोर्स टू स्टॉप कैच अ क्रिकेट बॉल, ठीक है ना। यानी वो अपनी बॉल को कैच कर रहा है, इस तरह से बॉल जो है स्टॉप हो गई है और ये सब करने के लिए वो अपनी फोर्स यूज़ कर रहा है। वो जंप कर रहा है, जंप करते हुए बॉल को कैच कर रहा है, ठीक है ना। और बॉल उसके हैंड्स में आके स्टॉप हो गई है, ठीक है। तो बॉल स्टॉप भी हो रही है और उसको वो कैच भी कर रहा है। तो सब कामों के लिए उसको अपनी फोर्स, अपनी एनर्जी, अपनी फोर्स यूज़ करनी पड़ रही है, ताकत लगानी पड़ रही है। अगर वो अपनी जगह से मूव ना करे और फोर्स ना यूज़ करे तो वैसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम डेली लाइफ में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं कि हम हर काम के लिए किस तरह से फोर्स यूज़ करते हैं। ओके, नाउ बाय ऑल दिस स्टडी वी कैन गेट द कंक्लूजन। ये सब से हमें पता चलता है कि फ़ोर्स हमारे लिए, इससे हमें पता चलता है कि फ़ोर्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारे कितने सारे काम करती है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि अब फ़ोर्स हमारे लिए क्या क्या काम कर सकती है। लाइक लुक एट द पेज नंबर 78 स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी पॉइंट्स आर रिटन हियर, ठीक है। देखिए, फोर्स कैन मूव अ बॉडी, ठीक है। फोर्स जो है बॉडी को मूव करवा सकती है, अपनी जगह से मूव करवा सकती है। उसको पुश करके हम मूव कर सकते हैं, पुल करके हम मूव कर सकते हैं किसी बॉडी को, ठीक है। तो फोर्स के थ्रू हम किसी बॉडी को मूव कर सकते हैं, ठीक है, ड्रैग कर सकते हैं कोई चीज़ को, राइट। तो
ये है कि फोर्स की वजह से कोई चीज़ जो है अपनी जगह से मूव कर सकती है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है। अभी जैसे बॉल के केस में आपने देखा कि जब बैट जो है बैट से बॉल को हिट करते हैं तो बॉल डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इसका मतलब कि फोर्स यूज़ करते हुए हम किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। देयर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल सोचना, आपने एग्जाम्पल सोचनी है कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अपने पास नोट करके रखिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगी कि क्या कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है कि जिसके थ्रू किसी फोर्स यूज़ करते हुए हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ठीक है। यानी कोई चीज़ चलती हुई तेज़ी से उसकी तरफ आ रही है, ठीक है, लाइक बॉल आ रहा है तो उसको कैच करके उस बॉडी की मूवमेंट को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स यूज़ करके हम किसी मूविंग बॉडी की मूवमेंट को हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्क इज़ दैट फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, ठीक है। फोर्स यूज़ करते हुए हम किसी भी चीज़ की किसी बॉडी की हम जो है उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से हम किसी चीज़ की शेप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो है छोटी सी जो एग्जांपल है, जो बच्चे बहुत शौक से खेल रहे होते हैं, जो क्ले होती है, ठीक है ना। क्ले आप देखते हो, क्ले आप बच्चे यूज़ करते हैं इसको, और उसको यूज़ करके फोर्स अप्लाई करके अपनी उससे बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के जो है वो कार्टून्स टाइप के चीज़ें बना रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें बना रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है ये सारी काम में, सब एक्टिविटी में जो है फोर्स इन्वॉल्व होती है। फोर्स यूज़ करके ही वो ऐसा कर रहे होते हैं, ठीक है। सो देयर नंबर ऑफ एग्जांपल्स स्टूडेंट्स के जिसके थ्रू जो है ना फोर्स यूज़ करते हुए हम किसी भी चीज़ की जो है शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन योर बुक देयर आर डायग्राम इज गिवन हियर, ठीक है। इन पॉइंट्स के साथ ही देखिए आप एक डायग्राम यहाँ पर शो की गई है। डायग्राम में शो किया गया है, you can see the diagram. In diagram you can see there is a rod and देखिए रॉड है, उस पर उस पर जो है हाथ से जो है फोर्स अप्लाई की जा रही है, और अप्लाई करके जो स्ट्रेट रॉड थी उसको कर्व कर दिया गया है, उसको यानी उसकी शेप चेंज कर दी गई है। तो नीचे लिखा हुआ भी है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स यूज़ करते हुए किसी ऑब्जेक्ट की, किसी चीज़ की जो है शेप को चेंज किया जा सकता है, इजीली चेंज किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। तो आज होमवर्क में आपके पास एक एक्टिविटी है जो मैंने आपको दी है, वार्म अप एक्टिविटी है, और मैं आपको क्वेश्चन आंसर आज होमवर्क में नहीं दे रही हूँ। आज फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए जो है थोड़ा सा लाइट रखा है। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव द क्वेश्चन आंसर विद द लेक्चर ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, if you have any query, any question, any problem in the lecture, then you can ask me. ओके, ख़ुद भी स्टडी करिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, और जो है वार्म अप एक्टिविटी करके ज़रूर करें बुक में। देन आई विल चेक योर बुक्स, ठीक है। मैं बुक्स चेक करूँगी आपकी बाद में, आप इसको वार्म अप एक्टिविटी करके रखें इससे अपने पास बुक्स पे, और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई थिंक यू विल फाइंड द लेक्चर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, और बहुत इसमें एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद इसको जो है ना आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप पर, ठीक है। सो हाउ फोर्स कैन डू द वर्क, ठीक है। व्हाट आर द एग्जांपल्स इन विच यू कैन शो द फोर्स इज वर्किंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर of yourself, and please do the warm up activity, and then I will check it. Okay, thank you, take care, Allah Hafiz.